to me. First of all, we will see that what we have covered in our last session. So students, just confirm me this thing, that is everything is clear to you, whatever we have done in the last session. Yes, students, whatever we have covered in the last session, is it clear to you or not? हम लोगों ने कोविड से रिलेटेड अपना एक मॉडल पे प्रॉब्लम सॉल्व की थी, वो क्लियर है या नहीं? ओके, फाइन फाइन, ओके. And moreover, we have covered our basic things, that what is design thinking. After we have covered this particular Venn diagram, we have why we always use design thinking, why bigger organizations are using design thinking, the importance of design thinking, history of design thinking, and then today we will cover the IBM's design thinking framework. See, here we will see that which design thinking framework IBM is using. Is it fine? So let's continue. Okay. One thing, the content is available. Content means somehow some people are available for you, so you can go through with that, and this particular document is also available. So if you want to go to that, if you want to study that, you can. Fine. And whatever the topics we will cover further, I will provide link, or I can say PPTs related to that with you all. Right? So see, we have second chapter of our first unit, that is IBM Design Thinking Framework. See students, in this particular chapter, what we are going to cover? We are going to cover the framework of IBM related to the design thinking. Means we will see that कि जो design thinking है, IBM जो use करता है design thinking के concepts, they are using a particular framework. तो वो particular framework है क्या, उसके particular I can say क्या modules है, क्या process है. So see, IBM is changing how it works and how it thinks about problem solving. Because not even about IBM, each and every organization, those who are using design thinking, they now are working with using design thinking, trying to solve their bigger problems. Right? It's an evolving methodology that we are using across key business units to derive more delightful outcomes to the user. Means एक अच्छा outcome, एक प्रोडक्ट अगर आप लोगों को एक अच्छा सोल्यूशन, एक आप लोगों को एज अ रिजल्ट चाहिए, तो हम लोग ऑफ कोर्स डिजाइन थिंकिंग का यूज करेंगे. फाइन. नाउ एज अ एंटरप्राइज टीम यू फेस कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस. ऑफ कोर्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर कोई भी पर्टिकुलर मॉड्यूल डेवलप करना है, या फिर कोई भी चैलेंज है, या कोई भी सॉफ्टवेयर है जो हम लोग को डेवलप करना है, उसके लिए ऑफ कोर्स ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन, ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ आर गोइंग टू हैव अ कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस. Fine. So they work across silos and juggle competing requirements, all while racing to meet rising expectations. Now let's talk about something about IBM. IBM developed enterprise design thinking. It's a framework that aligns multidisciplinary teams. If you remember, we have covered this thing also. We also discussed that what is multidisciplinary. So IBM design thinking framework using multidisciplinary teams around the real needs to their users. Means जब उन लोगों ने अपने यूजर्स के इश्यूज को रिजॉल्व करना है, they are using multidisciplinary teams. When teams apply these scalable methods, इसमें कुछ methods होते हैं, we will discuss those methods. Okay, so जब भी scalable methods apply होते हैं, they are able to move faster and deliver differentiated outcomes repeatedly. Fine. So this is whole design, I can say. Now see, IBM design thinking, just one second, let me expand it. Since IBM design thinking, it's an approach to sparking innovation.
ओके ऑफ कोर्स अगर आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए, सो फॉर बेटर रिजल्ट व्हाट यू विल डू, यू विल यूज अ पर्टिकुलर अप्रोच, और अप्रोच आई कैन से डिजाइन थिंकिंग अप्रोच। तो इसमें 3 स्टेप्स है हमारे पास। दिस वन फर्स्ट मल्टी डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, सेकंड जिसमें हम लोग फोकस करेंगे अपने यूजर की नीड्स पर, एंड थर्ड वी हैव रेस्टलेस इन्वेंशन, आई कैन से रेस्टलेस री इन्वेंशन। ओके फाइन, now see, first of all we will discuss embrace multidisciplinary teams to work smarter and faster. Can anyone tell me that what was multidisciplinary जो हम लोगों ने उस दिन डिस्कस किया था? हाँ जी, क्या कंसेप्ट था मल्टीडिसिप्लिनरी का? Anyone participants? Anyone students? किसी को तो याद होगा। हार्दिक याद नहीं? ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? To generate work in more than 2, देखो more than 2 means okay. Anyone else? Yes. See, multidisciplinary, first of all, it's a kind of approach that we are using in a design thinking. इस चीज का जरूर ध्यान रखना, क्या है, एक approach है. This approach is used by the teams to work smarter and faster. Means what they will do, they will work differently in the different disciplines, different parts में, different modules में एक साथ काम करेंगे, so that they can work smarter and faster. Fine. So पहले तो ये चीज है. ऑफ कोर्स, क्यों? क्योंकि देखो अगर एक ही चीज पे 10% काम कर रहे हैं, सेम ही आउटपुट आनी है, तो सेकंड मॉड्यूल को डेवलप करने के लिए ऑफ कोर्स टाइम लगेगा। फिर पहले वो 10% एक पे काम करेंगे, फिर वो 10% से पे काम करेंगे। लेकिन अगर वही पर्सन क्या करें, अपने आप को डिवाइड कर दें, लाइक कि एक सॉफ्टवेयर की बात करूं तो लॉगिन पेज दो पर्सन बना रहे हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन पेज 2 पर्सन, होम पेज 2 पर्सन बना रहे हैं। अब क्या वही काम डिवाइड हो गया है, और सी टाइम भी कम यूटिलाइज होगा, ठीक है। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी। फाइन, देन वी हैव फोकस ऑन द यूजर नीड्स एंड एक्सपीरियंसेस। मींस जो भी उन लोगों ने डेवलप करना है वो डेवलप किस वे में करेंगे, दे विल डेवलप यूजिंग द यूजर नीड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी नीड नहीं देखेंगे, दे विल सी कि यूजर की क्या रिक्वायरमेंट है, यूजर की क्या एक्सपेक्टेशंस है रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। सो वो लोग उस पर फोकस करके आप लोगों की पहले तो क्या करते हैं, गैदरिंग वगैरह करेंगे। गैदरिंग करने के बाद अपनी प्लानिंग फेज में काम करेंगे। प्लानिंग फेज में काम करने के बाद वो लोग अपनी इन्वेंशन शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, सपोज उबर का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। उबर क्यों बनी? कैन एनीवन टेल मी दैट व्हाई? अगर कोई भी डेवलपर है या जो भी सीईओ है इस टाइम पे आप लोगों के उबर का, व्हाई ही थिंक्स अबाउट द उबर? तो आज का जो हम लोग टॉपिक करेंगे लैब में, आज और कल, वो उबर है, ठीक है। सो स्टार्ट जनरेटिंग द on the Uber. Now question is here that कि हमें Uber की नीड क्यों पड़ी? ऐसा क्या हुआ होगा कि Uber डेवलप की गई? Yes, anyone? Uber तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। Generate your points fast. You can mute yourself. Unmute yourself and speak on. You can speak even. Otherwise, you can drop your message in the chat box. ये स्टूडेंट प्लीज रिप्लाई कि हमें ऐसी नीड क्यों पड़ी होगी उबर की, जिसने भी डेवलप की, क्यों डेवलप की, क्या रिक्वायरमेंट थी उस टाइम पे?
At every location, we can't have our own vehicle for transport. Right, Vamsi? To reduce the cost of direct transportation. Signed, Hardik. What about rest 81 students? Sharing rides reduce cost and helps in carpooling. Fine, Manshaj. Good. Yes, others? Basically, one-sided transportation. Fine, Tabjul. Fine. Generate more and more ideas fast. See, the points that you have properly in a chat box are all right. Fine. तो कुछ ऐसे ही नहीं. See, for example, हो सकता है उस टाइम पे the person is not having their own vehicle, और अगर उसे इधर से उधर जाना है, ओके, या ट्रैवल करना है, अगर लाइक ट्रांसपोर्ट नहीं यूज करना है, लाइक बसेस वगैरह का नहीं यूज करना है, ट्रेन का नहीं यूज करना है, देन दे कैन यूज द उबर. ओके, अब पहले रिक्वायरमेंट थी कि अगर पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ठीक है. सेकेंड थिंग हो सकता है टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन. ये पॉइंट भी सही है जो हार्दिक ने बोला, ठीक है. अब इससे क्या होगा, एनवायरमेंट भी बचेगा. फाइन, एनवायरमेंट बचेगा हमारा, हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बचेंगे, ठीक है. बिकॉज सी, एक ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जो फर्स्ट पर्सन जा रहा होगा, सेकंड पर्सन भी उसी पे जाएगा, अगर हम लोग कारपूलिंग कर रहे हैं, ठीक है. तो ये कुछ पॉइंट्स थे. अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक ही बार तो डेवलप नहीं होगी. मीन्स एक बार जब डेवलप कर दी उबर, तो ऐसा तो नहीं है कि उसमें कोई नहीं आए. ऑफ कोर्स उसमें अपडेट्स आते रहते हैं, हम उसको री इन्वेंट करते रहते हैं. कोई भी एप्लीकेशन है, नॉट इवन अबाउट उबर, कोई भी एप्लीकेशन ले सकते हो, हमेशा क्या आता है, उसके अपडेट्स आते हैं. सो दैट इज अ पार्ट ऑफ रेस्टलेसली री इन्वेंट. अब हम लोग क्या करेंगे, रेस्टलेसली री इन्वेंट करते रहेंगे अपने एप्लीकेशन पे, अपडेट्स लाते रहेंगे, सो दैट ऑफरिंग्स आर कंस्टेंटली रिफाइंड एंड इम्प्रूव्ड. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, बिफोर लॉकडाउन स्विगी क्या था, सिर्फ हम लोग फूड वगैरह ऑर्डर करते थे. लेकिन ड्यूरिंग लॉकडाउन आप लोगों ने नोटिस किया, उस पर हमारे पास क्या ऑप्शंस आ गए, लाइक नियर बाय शॉप से हम लोग कुछ अपना सामान मंगवा सकते थे, ठीक है. लाइक अगर हमें कन्फेक्शनरीज में कुछ सामान मंगवाना है, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स वट एवर, तो वो हमारे पास ऑप्शन आ गया था. इवन अब जो है क्या हुआ, इसमें एक और ऑप्शन आ गया कि लाइक हमारा उस पर बाइक एड ऑन होगी. लाइक हमें एक जगह से दूसरी जगह का कुछ सामान भिजवाना है, सो वी कैन बुक अ बाइक फ्रॉम देयर दैट पर्टिकुलर ऐप ऑल्सो. तो ये कुछ रेस्टलेसली रीइन्वेंशंस होती जा रही है हमारी एप्लीकेशंस पे, ठीक है. तो ये 3 फेजेस है हमारे पास डिजाइन थिंकिंग अप्रोच में, जो कि आईबीएम के फ्रेमवर्क में है, ठीक है. यही 3 आई कैन से स्ट्रक्चर्स को, तीनों स्ट्रक्चर्स को मिला के आप लोगों का आईबीएम का जो डिजाइन थिंकिंग का फ्रेमवर्क है वो वर्क करता है. फाइन. सी, IBM design thinking framework is placing end users at the center of innovation when tackling problems and developing solutions. Okay, it asserts that responsibility for innovation runs across an organization. Of course, अगर कुछ चीज डेवलप हो रही है, कोई भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, कुछ भी एप्लीकेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर रही है, तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसकी होगी, एक ऑर्गेनाइजेशन की होगी. फॉर व्हाट काइंड ऑफ फील्ड्स, आप लोगों की प्लानिंग फील्ड के लिए भी, आप लोगों के डेवलपमेंट फील्ड के लिए भी, आप लोगों के प्रोडक्ट को रिलीज करने की फील्ड में भी, और आप लोगों के उसको मेंटेनेंस के लिए भी. तो हर एक कंसेप्ट में आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन एक वाइटल रोल प्ले करेगी. Then bringing technologies together with executives, analysts, and customer-facing financial advisors engages customer centricity in an innovation process, helping companies pivot quickly when market conditions change. अब क्या हो, for example, let's suppose there is a XYZ company, okay, and due to COVID क्या हुआ, उसके shares बहुत ज्यादा डाउन हो गए. Fine, उसका बहुत ज्यादा लॉस होने लगा. तो अब पर्सन वांट्स की, जो भी उनके फाइनेंशियल एडवाइजर्स है, दे वांट्स की अब उनका जो, जैसे ही कोविड थोड़ा सा अब मींस लॉकडाउन हट गया, उसके बाद दे विल स्टार्ट कि हम लोग अपना वापस जॉब कैसे कर सकते हैं.
सो डिजाइन थिंकिंग अप्रोच को वो लोग वहां पे भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे वो लोग, लेट्स सपोज वो लोग ये देखेंगे कि कोविड में ऐसे क्या प्रॉब्लम आई, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा इतना प्रोडक्ट डाउन गया, हमारे इतनी मार्केट डाउन गई, तो वो चीज वो री इन्वेंट करने की कोशिश करेंगे, रेस्टलेसली री इन्वेंट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखो, हो सकता है उनकी जो भी पर्टिकुलर काम है उसको वो थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, ठीक है, तो वही सारी चीजें हैं। क्योंकि देखो आप लोगों ने अगर नोटिस किया, क्या हुआ था कोविड के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे कोई भी स्विगी से ऑर्डर नहीं कर रहा था, किसी भी शॉप से बहुत ही कम रेयर केसेस में ही कोई खाना मंगाता था। तो स्विगी का क्या हुआ उस टाइम पे, उन लोगों का बिजनेस थोड़ा डाउन आने लगा, तो उन लोगों ने इसको थोड़ा सा चेंज किया, मॉडिफाई किया। मॉडिफाई में क्या किया उन लोगों ने वेजिटेबल्स वगैरह अपने एप्लीकेशन में रन कर दिया। वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स मंगवा सकते हो, मीन्स किसी भी शॉप से कन्फेक्शनरीज का आइटम मंगवा सकते हो। तो वो सारी चीजें उन्होंने ऐड ऑन की कि चलो ठीक है हम अपने बिजनेस को बैलेंस करते हैं। सो वो सारी जो फिजिबिलिटीज ऐड ऑन हुई, दे कैन बी अ पार्ट ऑफ डिजाइन थिंकिंग। Now we have this particular, I can say, diagram in which we have 4 things: understand, explore, prototype, and evaluate. If you remember, we have discussed the 5 steps. Those particular 5 steps are thus related with this one. First, you have to understand that what is the problem. Like हम लोगों को पहले problem को understand करने की actually में problem है क्या, problem relate किस, फिर आपको उसको explore करना है. Explore means I can say that कि मुझे उस field से related खुद को भी जज करना है। लाइक मुझे ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अपने आप को भी जज करना है, अपने ऊपर ही लेकर जज करना है, नो, खुद को तो जज करना ही है, लेकिन उस पर्टिकुलर फील्ड, जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड जो अदर पर्सन है, मुझे उन्हें भी समझने की कोशिश करनी है। आफ्टर दैट, बेस्ड ऑन दैट, मुझे क्या प्रोटोटाइप डिजाइन करना है। प्रोटोटाइप डिजाइन करने के बाद मुझे उसको फाइनल इवेल्युएशन करवानी है। प्रोटोटाइप आई कैन से कि एक छोटा सा मॉड्यूल बनाना है, अगर एप्लीकेशन बनानी है या कोई नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो उसका जो भी सॉल्यूशन है उसका छोटा सा पार्ट, उस पार्ट को एग्जीक्यूट करना है, पहले चेक करना है कि दैट वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या उस पर वर्क कर रहा है, वो पॉजिटिव पॉइंट्स हमें ला के दे रहा है, क्या हमारा उस पर्टिकुलर प्रोटोटाइप का फीडबैक पॉजिटिव है। इफ यस, देन आप फाइनल इवेल्युएशन करोगे। फाइनल इवेल्युएशन हो सकता है आप फाइनल डेवलपमेंट भी कर रहे हो या फिर फाइनल एग्जीक्यूशन जो भी आप लोग के पर्टिकुलर सॉल्यूशन की होगी, ठीक है। At the heart of our human-centered mission in enterprise design thinking, a framework to solve our users' problem at the speed and scale of the modern enterprise. Fine. So ये एक particular framework है जो कि आप लोगों का IBM यूज करता है। Now students, इससे रिलेटेड आप लोगों को प्रॉब्लम्स बताती हूँ मैं कि आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, मीन्स क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं आप लोगों के। लाइक आई कैन आस्क कि ये डिजाइन आप लोग एक बार, लाइक अभी तो आप लोगों के एसेस जो है वो तो आप लोग एमसीक्यू है, बट नॉर्मली आई एम जस्ट सेइंग कि आप अगर कभी इंटरव्यू के टाइम पे भी अगर आपकी कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोगों का डिजाइन थिंकिंग के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछती है, आप लोगों को फॉर एग्जांपल आईबीएम का बात करूं तो आईबीएम के फ्रेमवर्क्स के भी बारे में पूछा जा सकता है। आप लोगों को ये 3 वर्ड्स बहुत ध्यान रखने पड़ेंगे कि तीनों वर्ड्स का मीनिंग क्या है, तीनों वर्ड्स काम कैसे करते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी, फोकस ऑन द यूजर नीड्स एंड रेस्टलेसली रीइन्वेंशन। फाइन। एंड देन दीज 4 वर्ड्स, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि 4 वर्ड्स जो है इनका प्रॉपरली मीनिंग क्या है, प्रॉपर फेजेस कैसे हैं, कैसे ये वर्क करते हैं। क्लियर? तो ये था हमारे पास आईबीएम का डिजाइन थिंकिंग फ्रेमवर्क। इतना क्लियर है सबको? यस, फ्लाई फास्ट। Anyone having any doubt? Yes, किसी को कोई भी डाउट है इसमें? Yes, मयूर क्लियर है? मयूर, इज इट क्लियर और नॉट? यहाँ पे जो सेकेंड चैप्टर था इसमें ये इसको ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम ये तीनों वर्ड्स को एक्सप्लोर करेंगे प्रॉपर्ली।
फाइन। और यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रक्शन होती है एम्पैथी मैप्स की, जिससे हम अपना लैब वर्क करेंगे, ओके, विद बोथ ऑफ द ग्रुप्स. नाउ सी, the principal guide us. Principles means ये जो तीन चीजें थी, the focus on the user outcomes, restless invention, और then we have diverse empowered teams. Okay, these three things, they are also known as principles. Okay, principles of design thinking. So see students, the enterprise design thinking begins with the set of principles. तीन principles आप लोगों के, fine, that to the heart of these questions. These principles provide the foundation for delivering solutions that meet or exceed your users' expectations. Means इन्हीं solutions का use करके, इन्हीं आप principle का use करके आप अपने solutions बनाओगे, आप अपने product बनाओगे, that will be I can say according to the user expectations, or that will meet the user expectations. Okay, to be successful, please speak to your team heart as well as its head. Let's see problems and solutions from a new point of view and as an ongoing conversation. Means actually होता है क्या है कि like अगर आपको कोई भी problem solve करनी है, normally कोई भी problem बात कर रही हूँ, अगर कोई development की बात नहीं कर रही हूँ मैं, I'm not about organization, I'm talking about any simple प्रॉब्लम. आप लोग क्या करते हो, कोशिश करते हो कि उसको न्यू पॉइंट से आप उसे जज कर सको, न्यू पॉइंट से व्यू कर सको, ताकि आप लोगों के पास सॉल्यूशंस अच्छे निकले. Same thing that we are using in our design thinking concept. See, IBM built on that idea, adding strategies, tactics, and activities to create a framework that uniquely scales design thinking across teams of all shapes and sizes, whether they are co-located or widely dispersed. Means actually होगा क्या इसमें कि IBM जो है, जो IBM ने अपना डिजाइन थिंकिंग कॉन्सेप्ट बनाए थे, लाइक जो मूडल बनाया है हम उन्होंने अपना, ठीक है, मूडल का एक खुद का सॉफ्टवेयर है जो जिसमें हम लोग अपने फर्दर डिजाइन थिंकिंग से रिलेटेड एम्पैथी मैप्स, अपने वेन डायग्राम से सब कुछ डिजाइन करते हैं. ठीक है, तो उन्होंने सारे आइडियाज, अपने जितने भी स्ट्रेटेजीज थे, जितने भी उनके पास टेक्टिक्स थे, या फिर जो भी काइंड ऑफ एक्टिविटीज वो लोग क्रिएट करना चाहते थे, वो उन लोगों ने अपने फ्रेमवर्क पे ऐड ऑन कर दी. ठीक है, ताकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक टीम जो भी यूज कर रहे हैं, वो अपने आइडियाज के अकॉर्डिंग उन्हें रीशेप कर सके या उसको एक ब्यूटीफुल डिजाइन दे सके. फाइन. So see, focus on the user outcomes, diverse empowered teams, and the spirit of restless invention. ये तीन phases है. If I talk about a focus on the user outcomes, means drive business by helping users achieve their goals. होगा क्या इसमें? Means आप लोगों को अपना business इस particular requirement तक लेके जाना है, इस particular achievement, उसको इस particular achievement तक लेके जाना है, आपको goals सारे fulfill करने हैं. ठीक है, तो वो फुलफिल कैसे करोगे? जब तक आप यूजर की रिक्वायरमेंट को नहीं चेक करोगे कि यूजर की क्या रिक्वायरमेंट, यूजर की क्या डिमांड है, तब तक आप अपना फाइनल गोल अचीव कर सकते हैं. सो डन विद दैट, आप लोग कंटिन्यू. आर यू गेटिंग माय वॉइस? यस स्टूडेंट्स, इज देयर एनी काइंड ऑफ ब्रेकेज? Yes, is there any kind of breakage or not? Okay, fine. See, so we are discussing about restless reinvention. Once you're done with the first step, आप लोग कहाँ शिफ्ट हो जाते हो? रेस्टलेस रीइन्वेंशन पे. अगर तो आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी डेवलप है, आपको न्यू कोई पर्टिकुलर इशू आया है, वो रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप री इन्वेंशन करोगे. अगर वो नहीं किया तो हो सकता है हम फर्स्ट टाइम भी अपना प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हो सकता है हम फर्स्ट टाइम ही वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे. ठीक है, तो ये सब स्टेप्स हो सकते हैं. सेकेंड स्टेप में वही कि आप रेस्टलेसली री इन्वेंशन करते रहते हो, और ऐसा नहीं कि आपने एक ही बार उसको इन्वेंट कर दिया तो वही आप बहुत सालों तक चलाओगे, नहीं. क्योंकि यू नो वेरी वेल दैट द एरिया इज चेंजिंग नाउ, द ईरा इज चेंजिंग नाउ, आई कैन से. आपके हर एक साल में कुछ ना कुछ री इन्वेंशन हो रही है. जो अब तक की टेक्नोलॉजीज है वो हर साल चेंज होती जा रही है. जस्ट 1 सेकेंड स्टूडेंट्स.
या सो सी आई वाज सेइंग दैट कि जरूरी नहीं सिर्फ एक ही बार वो इन्वेंशन करेंगे, हो सकता है आज इन्वेंट किया, 2 महीने बाद कुछ नया चेंज आया, फिर से री इन्वेंट करेंगे उसको। री इन्वेंट मीन्स उसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो इससे ये कंसेप्ट ना चलता रहता है। और री इन्वेंशन का साइन जो होता है, दिस इज योर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स वो एक लिमिट नहीं कि री इन्वेंट कब तक होना है, वो कब अनलिमिटेड टाइम तक, इन्फिनाइट टाइम तक वो री इन्वेंट होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एप्लीकेशन है, अब री इन्वेंशन ये नहीं कि जरूरी उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज, न्यू टेक्नोलॉजीज ऐड ऑन की जाए, न्यू फीचर्स ऐड ऑन की। हो सकता है पुराने एप्लीकेशन में कोई बग आ रहा, आप बग भी रिमूव कर रहे हो, ठीक है, तो वो भी एक रेस्टलेस री इन्वेंशन है। फाइन। देन वी हैव डाइवर्स टीम्स मूव फास्टर बाय एम्पावरिंग डाइवर्स टीम्स टू एक्ट। तो इसमें एक्चुअली होगा क्या कि आप जब री इन्वेंट कर जाओगे अपनी कोई पर्टिकुलर चीज, तो आप लोग उसको क्या करोगे, टीम्स के अकॉर्डिंगली पहले तो टेस्टिंग करोगे, टेस्टिंग करने के बाद उसको आप मार्केट में रिलीज करते हो। फाइन। नाउ सी the success is made how well human needs are fulfilled. Of course, आपने अगर किसी भी particular solution का success rate देखना है, तो हम ये देखते हैं कि वो कितने human needs को fulfill कर रहे हैं. Fine. Users are more than just a paid for. They are partners in design also. Of course, अगर आप लोगों को याद होगा, we have discussed, जब आप लोगों की agile methodology आती है, तो agile स्ट्रक्चर में क्या होता है, एजाइल मेथड में क्या होता है, जो भी पर्टिकुलर पर्सन है जिसके लिए डेवलप कर रहे हैं हम लोग एप्लीकेशन, वो फर्स्ट फेज से एंड फेज तक कनेक्टेड रहता है। तो यही बात यहाँ पे बोली गई कि यूजर आर मोर देन जस्ट अ पीपल मेड फॉर, दे आर पार्टनर्स इन डिजाइन ऑल्सो। मीन्स वो आप लोगों के स्टार्टिंग फेज से एंडिंग फेज तक आप लोगों के साथ रहेगा, ठीक है। मेक यूजर्स योर नॉर्थ स्टार, दे आर द प्रेमाइस ऑफ एवरी एक्शन दैट इज टेकन। मेजर योर सक्सेस बेस्ड ऑन द वैल्यूज दैट आर ब्रिंग टू देम। नॉर्मली आप लोगों के पास एक स्टिकी नोट बनाया गया है यहाँ पे, लेट्स डिस्कस द स्टिकी नोट्स। सी, इसमें एक्चुअली क्या किया गया है, यूजर्स को नॉर्थ स्टार के अकॉर्डिंग मार्क किया गया है कि दीज आर द यूजर्स, ओके, एंड जो डॉट्स है वो आप लोगों के एक्शंस हैं। सो सी, अब यहाँ पे कौन सी चीज हाईलाइट हो रही है, नॉर्थ ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं, मीन्स आपके यूजर्स ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। और यूजर जब ज्यादा हाईलाइट होते हैं तो उनका जो सक्सेस रेट होता है वो बहुत ज्यादा हाई है। ऑफ कोर्स कोई एप्लीकेशन है अगर उसको ज्यादा पर्सन यूज कर रहे हैं तो मीन सक्सेस रेट हाई है। अगर उस एप्लीकेशन को हार्डली 2 या 3% यूज कर रहे हैं तो मीन्स इट्स नॉट हैविंग अ गुड सक्सेस रेट। तो ये चीजें थोड़ी सी हम लोग यहाँ पे लाइक स्टिकी नोट्स में हम लोग मूरल पे बना सकते हैं। फाइन। सो इन चीजों का आप लोग ध्यान रख सकते हो, बिकॉज अब हम जो एग्जाम्पल करेंगे वो हम लोग ऊबर पे करेंगे, ठीक है, हम ऊबर पे अपना पूरा डिजाइनिंग करेंगे। सो आप लोगों को थोड़े थोड़े आइडियाज रखने पड़ेंगे कि आप लोग क्या क्या चीजें थोड़ा सा इफेक्टिव वे में कर सकते हो मूरल पे। फाइन। Then we have restless reinvention. Everything is a prototype. Being essential and staying essential requires a continuous conversation with our users and clients. Fine. Responding to their changing needs through rapid prototyping and constant iteration means आप लोग of course हर एक चीज प्रोटोटाइप ही होती है। अगर हमने एक प्रोडक्ट रेडी कर दिया है वो भी एक प्रोटोटाइप है। व्हाई? क्योंकि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वो ऐसा तो नहीं कि फाइनल प्रोडक्ट है, ऐसा तो नहीं आप रीइन्वेंशन करोगे नहीं, तो वो भी एक प्रोटोटाइप के अंडर ही काउंट किया जाता है। सो दैट्स व्हाई इट इज सेड हियर दैट एवरीथिंग इज अ प्रोटोटाइप. Being essential and staying essential requires continuous conversation with our users and clients. Fine. Responding to their changing needs. Now, no solution is ever considered to be truly complete. Yes, कभी भी कोई भी solution truly complete नहीं माना जाता है. The success of the team centers to their capacity to look at the human need with fresh eyes and putting theories about how to better approach old problems to the test. See what happened actually, आप लोगों के जितने भी solutions होते हैं उनको कभी भी complete माना जाता है। क्यों? क्योंकि see, हो सकता है आज के लिए आप बोलोगे कि नहीं it's a best solution, but 4 दिन बाद 10 दिन बाद आपको उसी सॉल्यूशन से कोई प्रॉब्लम जनरेट हो जाए, ठीक है, या फिर एक न्यू कोई प्रॉब्लम जनरेट हो जाए। तो दैट्स व्हाई हम हमेशा बोलते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन ट्रूली कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं होता। कोई भी सॉल्यूशन आपके पर्टिकुलर एप्लीकेशन, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कभी भी सक्सीड नहीं करेगा, उसके लिए सक्सेसफुल नहीं रहेगी, क्योंकि आपके लिए यू नो वेरी वेल प्रॉब्लम्स तो आती ही रहेगी, ठीक है। ऐसी कोई भी सॉल्यूशन नहीं है जिसकी वजह से अब आपके कमिंग वाली इनकमिंग प्रॉब्लम्स पे हट जाएगी, नो।
That's when the success of the team centers to their capacity to look at the human need with fresh eyes and putting theories about how to better approach old problems to the test. So means वही चीज यहाँ पर बोली गई है कि like जो भी सक्सेस है वो एक टीम का सक्सेस है एंड हाउ दे विल टोटली वर्क अकॉर्डिंग टू द बेटर अप्रोच कि कौन सी अप्रोच सबसे ज्यादा अच्छी है कि हमारे पास जो प्रॉब्लम्स है हमको टेस्ट कर सके, सॉल्यूशन निकाल सके. फाइन. So here we are talking about restless. So restless further. अपना restless में तीन चीजें हैं: observe, reflect, make. Now, if I talk about observe, reflect, and make, so see here we have some content. Here's the thing about restless reinvention: you will never feel done. There will always be better solution around the corner. Of course, होता क्या है, आपने एक solution generate किया, उस solution के basis पे आपने एक लाइक सॉल्यूशन जनरेट किया, सॉल्यूशन के बेसिस पे आपने प्रोडक्ट रेडी कर दिया. अब क्या होगा आफ्टर दैट? हो सकता है आपके माइंड में कुछ और बेटर सॉल्यूशन आ जाए कि नहीं ये सॉल्यूशन अच्छा नहीं है, ये भी इससे अच्छा सॉल्यूशन मेरे पास है. तो दैट इज अ थिंग दैट विल ऑलवेज बी द बेटर सॉल्यूशन जस्ट अराउंड द कॉर्नर. इफ ओनली यू हैड अ लिटिल मोर टाइम, if you had a few more resources, if only the only the technology was a little better. Fine. Now see, but if you don't commit to an idea, then what will happen? You risk missing a window of opportunity as a market evolves and your users' lives move on. Without committing to an idea, there can be no outcome. Of course, जब तक आप अपने कोई भी particular, हम जिसे बोलते हैं normally कि आप जब तक कोई रिस्क नहीं लोगे, आप लोग क्या नहीं कर पाओगे, किसी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाओगे. हर एक प्रॉब्लम को फेस करने के लिए हमें कोई ना कोई रिस्क लेना ही पड़ता है. So same thing is here कि कोई भी चीज को फाइनली अचीव करने के लिए we have to take a risk and we have to see that कि उसका आउटकम क्या है. Okay. Now that every solution is not perfect. When you use enterprise design thinking, your bias is toward action. Of course, जब भी आप लोग enterprise design thinking का concept use करोगे, you will pursue perfection with the humility of knowing that in the fullness of time nothing is perfect. कुछ भी perfect नहीं होगा आपके इसमें, ठीक है? That is everything is a prototype. तो अगर आपको कभी भी कोई पूछे why everything is a prototype, so you can mention कि कोई भी चीज no solution is a perfect. Okay, you should be biased in your towards actions. And one more thing that आप लोग जो भी achieve करोगे वो क्या होगा, वो perfect नहीं है. क्यों? क्योंकि हो सकता है उससे रिलेटेड फर्दर प्रॉब्लम्स आ जाए. सो दैट्स व्हाई एवरीथिंग इज अ प्रोटोटाइप. इस चीज को ध्यान रखना दैट व्हाई एवरीथिंग इज अ प्रोटोटाइप. It is about enhancing or scaling a company existing offerings and solutions rather than always looking ahead to the next big thing. ठीक है. अब देखो, जब भी हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें बिग सॉल्यूशंस निकालने के लिए नहीं, दिस वन इज अ बेटर वन. हम लोग छोटे से छोटे सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करने की कोशिश करें. Fine. It becomes important when, for example, a new regulation threatens an existing offering and capability. Deploying small, agile innovation, teams can address their issues, even turning barriers into competitive advantage. Okay, so means अगर आप से छोटे में देखोगे तो क्या होगा, आप लोग अपने जो भी आप लोग की लाइक ऑफरिंग्स है या फिर आप लोग की अजाइल मेथोडोलॉजी है, यू कैन गो थ्रू विद दैट. आप अपनी टीम के साथ इजीली काम कर सकते हो और आपको ऑफ कोर्स जो भी पर्टिकुलर बैरियर्स है यू कैन क्रॉस दैट पर्टिकुलर बैरियर्स. ओके, सो ये कुछ प्रॉब्लम्स, ये कुछ कंटेंट है हमारे पास, ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स है आप लोगों के पास डिजाइन थिंकिंग से रिलेटेड. डिजाइन थिंकिंग में भी फर्दर क्या था हमारे पास, डिजाइन थिंकिंग में पहले हम लोगों ने पढ़ा आईबीएम का फ्रेमवर्क, उसके बाद द प्रिंसिपल गाइडर्स. 3 प्रिंसिपल्स है हमारे पास: फोकस ऑन द यूजर, रेस्टलेस इन्वेंशन, डाइवर्स एम्पावर्ड. सो सी 2 हम लोग पढ़ चुके हैं, थर्ड वन इज हियर डाइवर्स एम्पावर्ड टीम्स. सो सी इसमें होता है क्या, हम लोग चेक करते हैं. इन दिस केस सी स्टूडेंट्स व्हाट वी हैव, just once again, diversity is a bedrock of a dynamic team. Okay, by empowering people with different skill sets, backgrounds and perspectives to bring their unique points of view to the table, we generate more breakthrough, better, faster ideas faster. Okay, of course आपको जब भी कोई टीम बनानी है,
हम लोगों के पास टीम जब भी बनेगी तो हम लोग क्या सोचते हैं कि हर एक पर्सन अलग अलग बैकग्राउंड से हो सकता है पर्सन एक, अगर मैं किसी टेक्नोलॉजी की बात करूं तो मैं चाहूंगी कि अगर मैं बना रही हूँ कोई एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, ओके, तो कोई HTML CSS में बेटर हो, कोई आपके जावास्क्रिप्ट में बेटर हो, कोई आप लोगों की PHP में बेटर हो, कोई डेटाबेस डिजाइनिंग में बेटर हो, तो मैं ये सारे स्टेप्स गो थ्रू करूंगी कि हाँ जी अपने अपने स्किल सेट्स के हिसाब से मैं अपना एक पूरी टीम बनाऊंगी ताकि क्या हो सके, वो अपने पर्टिकुलर फील्ड में यूनिकली काम कर सके. ओके, सो these are some points that we have in diverse empowered teams. Move faster and work smarter. Of course, different I can say technical person होंगे, different field के persons होंगे, तो वो अपनी field में better perform कर पाएंगे और collaborate भी कर सकते हैं better. क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है, अगर same technical field के या same field के मैं 2 persons रख लूं, हो सकता है दोनों के points of view नहीं match करें. ठीक है, सो दैट इज नॉट अ गुड पॉइंट. दोनों के पॉइंट्स अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम टू मी और माय टीम फॉर डेवलपिंग एनी सॉफ्टवेयर. तो इन चीजों का ध्यान रखना होता है. ठीक है, further we have two important team factors, diversity and empowerment. ओके, आप लोगों को जो डाइवर्स एम्पावरमेंट है इसमें आप लोगों के पास 2 टीम फैक्टर्स हैं, डाइवर्सिटी और एम्पावरमेंट. क्लियर है इन दोनों पॉइंट्स क्या है और क्या नहीं है? अभी तक जो हम लोगों ने किया इतना क्लियर है सबको? फर्दर वी विल डिस्कस दीज 2 पॉइंट्स. यस, इतना क्लियर है? यस स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर और नॉट? ओके, ठीक है. सो वी हैव अ लैब नेक्स्ट सेशन. तो हम लैब में एम्पैथी मैप से शुरू करेंगे एंड विद द सेकंड ग्रुप वी विल कंटिन्यू विद एम्पैथी मैप्स इन अ सॉरी, फॉर द सेकंड ग्रुप आई थिंक यू हैव अ लैब बाय टुमारो. सो सेकंड ग्रुप के साथ हम कल करेंगे. फाइन. नाउ स्टूडेंट्स प्लीज एक बार अपना बीबी चेक कर लीजिए और कंटेंट चेक करके मुझे कंफर्म करवा दीजिए कि आप लोगों को ये सब कुछ शो हो रहा है या नहीं शो हो रहा है. ओके फाइन अक्षय. So if I talk about one second, content यूनिट 1 में हमारे पास है कुछ PPTs. One second students. एक बजे तक, उसके बाद ब्रेक के बाद फिर लिखते हैं. So here are some of the PPTs जिनसे आप go through कर सकते हैं. ओके, ये PPTs में भी ऑल द सेम ही कंटेंट है जो आपके पास इस PDF में कंटेंट मैंने डाला है, लेकिन वो उसमें से फेच करके बनाई गई है. Rest if you want to go with the PPTs then you can go, otherwise you can go with this thing also. Fine. But I will prefer कि आप लोग इस PDF से जाइए क्योंकि इस PDF में आप लोग के पास बहुत ज्यादा कंटेंट है, थ्योरी काफी है. एंड आई कैन से दैट कि फर्स्ट यूनिट में तो थ्योरी ही थ्योरी है. ऑल द सेकेंड और थर्ड यूनिट में फिर भी आपके पास थोड़ा सा टेक्निकल वर्क आ जाएगा, थोड़ा प्रोग्रामेटिकल वर्क आ जाएगा, लेकिन फर्स्ट में तो पूरी थ्योरी है. सेकेंड चैप्टर एंड वी आर वर्किंग थर्ड चैप्टर. थर्ड चैप्टर में आपके पास डाइवर्स एम्पावरमेंट टीम्स में हम लोगों ने ऑल दो कंप्लीट कर लिया है. वन सेकेंड. Yeah, we are done up to him.
No, Harshit. You don't have any kind of certification exam for this course. Fine. That's why I'm trying to provide some content to you so that कि आप लोग उस content से पढ़ सको. Clear है? Just tell me one thing कि आप लोगों को assignments भी देनी है. फर्स्ट असाइनमेंट मैं मूरल पे दूं, आप लोग मूरल वाला सबमिट करोगे या फिर आप लोगों को कुछ ये थ्योरी वाली चाहिए? आप लोग खुद ही बता दीजिए जो आप लोगों को बेटर है. लाइक कुछ भी कोई भी कॉन्सेप्ट लेके हम लोग लाइक ऊबर का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, हम लोगों ने आज करना है ये लैब में, तो ऊबर के कॉन्सेप्ट पे आप लोग फर्दर वही सबमिट करोगे अपने असाइनमेंट 1 में. वी वांट टू सबमिट दैट थिंग. अदरवाइज यू कैन गो विद द थ्योरी पार्ट ऑल्सो. आप थ्योरी में भी सबमिट कर सकते हो. फिर थ्योरी के मैं आप लोगों को पर्टिकुलर टॉपिक्स प्रोवाइड कर दूंगी. द चॉइस इज योर्स, लेट मी नो, बट सिंगल चॉइस चलेगी सबकी. सो आप लोग डिस्कस करके मुझे बता देना आप लोगों को जो ठीक लगे. फाइन. CR प्लीज कंफर्म कर देना सबसे एंड डू लेट मी नो द फाइनल डिसीजन. अगर किसी को इसमें डाउट है तो पूछ लीजिए. सॉरी.